political situation was discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about Pakistan reaching a crisis point was discussed. And before I get into the details, Pakistan People's Party का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ लेना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a prime minister candidate, and this House fails to elect a prime minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto of issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has
decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए जो हुकूमत साजी का जो अमल है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनानी है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सके जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते, वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज उठाए जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से, सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी के लोगों ने शिकायत की है कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है कि हमारा जो कमेटी बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून से दूसरी सियासी जमातों से बात करने के लिए कि उस कॉन्वर्सेशन में जहाँ हम हुकूमत साजी की भी बात करें कि हम इंश्योर करें कि हम अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 पे 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी will collect all such complaints as far as this election was concerned। और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद, इस एहतजाजन इन इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability। मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। दूसरे जो हमारे एतराज़ात हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एक्सेट्रा, हम वो फोरम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। साथ साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर ज़रदारी साहब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायतें उठाई थी और सदर ज़रदारी साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को यकीन दहानी दिलाई थी कि हमारा जो ये शिकायतें हैं ये एड्रेस होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये शिकायत इंशाल्लाह ताला नहीं होगा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत शिकायतें हैं, एतराज़ात हैं जो हम जमा करके एड्रेस करवाना चाहेंगे। मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में ये भी वालिद साहब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी
کی طرف سے کھلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، ہم آپ کو پروفس دیں گے، اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں، دوسرے بھی اٹھاتے رہیں، کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا علاج نہ نکل جائے۔ تو ہم چاہیں گے in the larger contrast of in political stability in Pakistan that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties, and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی اسکرینس، یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں، یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا، جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے، میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا۔ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے، جو اب حکومت سازی کا عمل ہے، کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو، حکومت چل پڑے، ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا۔ میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے، وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے، میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکتا۔ جیسا بلاول آپ سے ایک سوال ہے، اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ اس الیکشن پر ریزرویشن رکھتی ہے اور دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے کی جائے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی ڈنچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا، سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا، اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا۔ نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں۔ اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمارا خون پسینہ کی محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں، اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے۔ تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بیچ رہے ہیں، لیکن ہمارا سیاستدان
उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें। अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों को मैंडेट मिल जाता। पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर जबरदस्ती पे ना चले, आप सब मिलके बात पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे। अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निजाम का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर ये अब हम अपने लिए ये समझते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो भी मुल्क के हालात हो, जैसे भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती है कि ये जमात हमें इंस्टेबिलिटी, केओस, गैर जमहूरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाएगी। तो वही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करें। जी सती साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो जरूर होगा ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी तय किया जा सके। और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूंगा। आईनी होते भी नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, आईनी होते जो है बड़े थी। सती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहली दफा बलोचिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और लोगों की बड़ी तवक्को है पीपल्स पार्टी से। तो सीएससी ने क्या फैसला किया है कि क्या वहाँ पे भी आप हुकूमत साजी करने जाएंगे, क्योंकि सिर्फ को तो आप वैसे ही जो है आपका वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अरीबा साहब, अरीबा साहब। Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to take presidency and governorship in the president? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम part of the government नहीं बनेंगे। मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू जरूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, उस पे हम जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने सवाल किया, शायद आपने भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक है हम इन इलेक्शंस में लड़े। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, तब भी हमने स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो इस बार जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे कि कौन
कौन हमारे उम्मीदवार होंगे वो तो पार्टी का फैसला होगा। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर जरदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए जरूरी है कि सदर जरदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। चेयरमैन साहब पावर शेयरिंग की बात हुई है, हो गया जी। गुरमानी साहब, जी गुरमानी साहब। गवर्नर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। मौजूदा इंतखाबात में तो 2018 की तरह कई सवालात भी उठ रहे हैं। आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म को वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो कितने अरसे के लिए आप देख रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर टिक सकेंगे? तो मेरा तो हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़रूर ये मौक़िफ़ होगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट पाकिस्तान अपने टर्म्स कंप्लीट करे और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज दिस कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फिक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये जिम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़े। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है, ज़ाती इंतकाम का सियासत। तो वो जब तक हम एड्रेस नहीं करेगा, और इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा सही सवाल है और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कॉन्टिन्यूटी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें। मलिक सही साहब। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपने मुतअद्दिद बार अपनी कैंपेन के दौरान कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून से ये मुल्क छोड़ा गया तो वो देगी। अब आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल हल कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती तो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बुझा दूं और उम्मीद रखे कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने जरूर जो उनका कुठाया है उनको भी मेरे ख्याल में मानना चाहिए कि जो गलतियां हुए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके अपने फैसले हैं। जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, ये जमहूरियत का असूल है, खास तौर पे इलेक्शन के दौरान तो
हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनमें उन्होंने जो गलतियाँ किया हैं, उनमें उनके पॉलिसीज़ पे जो हमारा एतराज़ात है, उस पे हम जोर दें, उस पे हम हाईलाइट करें। अब जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है, अगर पाकिस्तान की अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अब मुझे वो मैंडेट नहीं दिया गया। जहाँ तक मुस्लिम लीग का पॉलिसीज़ के सवाल है, ज़रूर हमारा मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे इख्तिलाफ राय होगा, मगर पार्लियामान की खूबसूरती ये है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप अपना राय रखते हो, मैं अपना राय रखता हूँ। आप समझते हैं कि आपका सबसे बेस्ट राय है, सोल्यूशन है किसी एक मसला का। मैं समझता हूँ कि मेरा राय, मेरा मौक़िफ़ सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी मसला का। हो सकता है कि आपका राय सही हो सकता है कि मेरा राय सही हो। उससे भी ज़्यादा मुमकिन ये है कि शायद मेरा राय और आपके राय के दरमियान में जो राय है वो सबसे बेस्ट हल हो उस मसला का। तो पार्लियामान का, जमहूरियत का ये एक तरीका है कि हम पार्लियामान में और पार्लियामानी जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बुनियाद पे हम फैसले करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान ना सिर्फ एक सियासी जमात का होगा, उसका नुकसान इस मुल्क का होगा। शुक्रिया। बिलावल साहब, ये बताइए कि आपने अपनी पूरी कैंपेन जो चलाई, आपने पहले मंशूर भी दिया, हमने देखा कि माजी में पंजाब आपका गढ़ होता था, लेकिन आज पंजाब में आपको चंद सीटें मिलती हैं, तो यही मफामत की पॉलिसी पहले भी आपका सियासी नुकसान कर चुकी है। क्या अब आप समझते हैं कि जो आपने जियाले को थोड़ा जगाया था, क्या वो जियाला फिर आपके मंशूर के साथ खड़ा होगा? देखो, आप जो अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता ना तो बड़ा आसान होता। मैं इधर खामोश होकर बैठ जाता, मैं कहता खान जाने, मियाँ साहिबान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताएं कि हालात क्या है इस वक्त। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है, सूबा पंजाब, सूबा पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मेरा फायदा है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम पीटीआई को भी और नून लीग को कहते कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। मगर क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान की अवाम के हम सोच रहे हैं। जरूर मेरा इसमें सियासी नुकसान होगा, मगर आपने हर मौके पे ये सोचना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा सियासत अहमियत रखता है, मेरा अपने आप को हर कीमत पे किसी कुर्सी पे बिठाने इस मसाइल का हल है, या इस निज़ाम को जिसके लिए हमने शहादतें दी, जिसके लिए मेरे कारकुनों ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरे पार्टी ने शहादतें दी, इस निज़ाम को हम चलाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेस है पंजाब में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, और इस साजिश जो है वो इस 2024 के इलेक्शन में मौजूद था, वो एक अमल जारी है। मगर मैंने आपको कहा था ना, मैंने वालिद साहब से कहा इस चीज़ का फैसला मुझे दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस इलेक्शन में करवाया गया उसका फैसला होना पड़ेगा। मैं ये नहीं उम्मीद रख सकता अपने पार्टी के साथ कि हम हर बार उनको कहें कि हम जमहूरियत के खातिर, हर चीज़ के खातिर, और बार बार हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। और आखिर में जो तमाम सियासी जमातें से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस इलेक्शन में अब किसी कोई रहा नहीं ना जो 30 साल से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, आज आपको पता है कि आपको कैसे और क्यों फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से मिलते हैं। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के दौर
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते हुए आपका फॉर्म 45 का रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से निकलवा दिया। आपको पता है कि इंटरम हुकूमत में जो कंसेंसस का फॉर्मूला था वो कैसे हुआ, ताकि कोई बायस सेटअप ना आए, मैं अपनी मर्जी से ना करूं, हम मिल बैठ के ऑपोजिशन की बात करें। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट लेकर आए और हमारा हुकूमत था, हम अमेंडमेंट नहीं लेकर आते 2013 के इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन, अपना मर्जी का इंटरिम गवर्नमेंट, और हम भी धांधली भी कर सकते थे। लेकिन हमने वो रिफॉर्म अपने दौर में लेकर आए कि हम अपॉइंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। किसने कहा पीटीआई को कि मैदान छोड़े? किसने कहा उनको कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़े? राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलके इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। अब आप चाहते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि मैं इंतहा पसंदी सियासत, इंतहा पसंद वाला सियासत करूं, वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीरियस जमात है। मैंने इस कैंपेन में और अपना सियासत में साबित कर दिया है कि बाकी सियासतदान मुझे उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, मगर पाकिस्तान के अवाम ये मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि मैं अपनी बेनिफिट देखते हुए कोई एक्सट्रीम पोजीशन लूंगा। नहीं साहब ये बताइएगा। बिलावल साहब, एक हिस्सा तो आपने जवाब दे दिया अभी, लेकिन इसी के साथ सप्लीमेंट्री ये है कि आपने अभी जिक्र किया कि पंजाब में किसी पार्टी के साथ साजिश हुई, उसके लिए बताइएगा कि साजिश किसने की? अगर नहीं इसमें कहीं पे आपको रिश्तेदार नजर आती है तो आपने उन्हीं के साथ बैठना है। फिर जिन तहफ़्फ़ुज़ात की आपने बात की है कि इलेक्शन के हवाले से आपने सदर के तारीख आपके सामने रखा है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात जो साबित हो जाते हैं, वो तमाम जो आपके खदशात हैं वो साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? जहाँ तक जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इश्यूज उठाए गए हैं, हमने इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने रखा, हमने इलेक्शन कमीशन को लिखते रहे जो भी हमारा एतराज़ात हैं। वालिद साहब से इसलिए मैं फैसला चाहता हूँ कि वालिद साहब ने सीईसी को ये गेंदबाजी लगाई इलेक्शन के दौरान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड करेगा, और मेरे लोगों का एतराज़ात है उस पर, तो वो ज़रूर उठाया जाएगा। जहाँ तक अगर उन एतराज़ात की वो उनको हम एड्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आएँ और इस किस्म का कानून साजी करें, इस किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करें, जिससे आगे जाके कोई इलेक्शन में ना मैं उंगली उठा सके, ना कोई और उंगली उठा सके। ये वाहिद तरीका है कि हम इस इशू को एड्रेस करें। लेनी Sure. PTI, we just had a press conference around the corner. They've merged with the NWA, which gives them access to a proportion of the reserve seats, and have demanded a recount in 55 contentious seats. And they say that this will give them an overwhelming advantage for government, given the probability that many of the independent seats will go to PTI. What's your assessment of this calculation and how realistic it is? I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember
35 punctures, and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges, or other political parties. It will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains, damage not only Pakistan's democracy, but Pakistan's economy and Pakistan's federation. Last question, जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमक्यूएम ने
बोरी बंद लाशों के अलावा, भंडाखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया। पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई है। तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरी बंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को चलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफरत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं कर रहे। Thank you. Are we done? Yeah. Yes, please.